Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Soul Sparks with Pallavi, and this is Pallavi. So I know it's been a long time and I can give you an explanation for that. Well, I just graduated from my college in the last month. I had my exam till 15th of June, and after that it was it was a very tough period for me because I had to let go of my friends. I had to let go of that environment. Uh, in which I was living for like 4 years. So it was quite difficult for me. And then I was traveling, and so I wasn't able to fulfill my promise, but I remember it, and I'll definitely finish the series that we have started. And I'm back again today with the episode number 3 of Healing Book series. And there's an amendment. Well, I would be trying, I would finish this series by 10th or 12th of July. Yeah, and after that, I'll try to start with the start the new series. So without wasting any further second, let's just dig into what we have in today's video. So before moving to the video, let me just discuss a term. The term is atonement. So what is atonement? So in life we all do such some mistakes which are not इंटेंशनल लाइक वो हमसे कभी कभी गलतियां हो जाती है, गलती से हम किसी को हर्ट कर देते हैं, ऑल्दो हम चाहते नहीं, एंड फिर हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, एंड फिर उस गिल्ट की वजह से हम सोचते हैं कि अब कैसे इसको सुधारा जाए, तो हम कुछ करते हैं, ठीक है, उस सामने वाले पर्सन के लिए हम कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे हम अपनी गलती को सुधार सके। तो उसी को बोलते हैं अटॉनमेंट, ठीक है। तो अब अटॉनमेंट है, तो आज हम लोग अटॉनमेंट की ही बात करेंगे। सो बेसिकली अटॉनमेंट एक बहुत ही प्यारी बुक है जिसको लिखा है आयन मिकॉन ने। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। या सो ये बुक में हम क्या जानने वाले हैं? ये बुक में हम जानने वाले हैं कि इवन दो लव व्हेन लव इज नॉट इनफ, बट इट वाज स्टिल एवरीथिंग फॉर टू पीपल। कैसे? ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है, इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ हैप्पी एंडिंग्स, इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ forever, but it's a story where you'll know the truth. You'll know a real truth, real raw truth, which will tell you that even though love wasn't for a long time, even though love was not enough, but it still mattered, and that love can be real and it can be devastated. Yes. So, in this video, we'll know that how a single moment can destroy your dreams, shattered your soul, and everything. So, without wasting any further second, let's just try to know what the whole book is all about. So, let me take you to a quiet summer of 1935. Let me take you to a England countryside, to a garden, to a library, to a fountain where two people are living, and their names are Cecilia Tellis and Robbie Turner. Well, Cecilia, she's a daughter of privilege, but Robbie was a gardener's son. And उन दोनों के बीच में सब चीजें normal है, like she is living her life and like Robbie is living his life, but one day, one letter, one kiss in the library, and everything changed at that moment. Actually, it was their moment, and in that moment they knew what they mean to each other, and in that moment they tied their destiny to each other. But there's a twist, and the twist is when they were kissing in the library, so someone was watching, and that someone was Bryony. Basically she was she's 13. She was a child at the time, but not very innocent. So what happened? She saw them kissing and she thought that okay, something is fishy over here. And उसको ये चीज समझ नहीं आई, ठीक है, कि ये क्या चल रही है। उसको लगा कि कुछ गलत हो रहा है। सो उसके वजह से ना उसने रॉबी पे इल्जाम लगा दिया, ठीक है, एक ऐसे क्राइम का जिस जिस जो उसने किया ही नहीं था। एंड क्योंकि वो एक गार्डनर का बेटा है, तो उसकी बात सुनी नहीं गई, एंड उसको जेल जाना पड़ा। So that night, love was interrupted. Two souls were shattered, and their love
never got the chance to be together again. Years passed, वॉर आए। जब वॉर आया ना तो रॉबी को ना ऑप्शन दिया गया, ठीक है, एक क्रूअल फ्रीडम का ऑप्शन क्या था? जेल और द फ्रंट लाइन्स, ठीक है। तो उसने बेसिकली सोचा कि चलो अभी ठीक है, अभी वॉर है तो लेट्स, जेल में मरने से तो बेहतर ही है कि कुछ करके मरते हैं, ठीक है। सो ही वॉक थ्रू फ्रांस, डर्टी एंड ब्लीडिंग, लेटर्स फ्रॉम सिसिलिया, कीपिंग दोज लेटर्स इन हिज हार्ट, क्लोज टू हिज हार्ट। एंड तब तक ना जो सिसिलिया थी ना वो नर्स बन चुकी थी, एंड she became nurse because she want to cure the person, she want to cure the wound। और उसको लग रहा था कि अगर वो दूसरे के वुंड को भरेगी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो तकलीफ है ना वो भी बढ़ जाएगी। इस तरीके से वो अपने अंदर को भी, अपने अंदर जो पीड़ा जो इतने सालों से उसने रखा है अपने अंदर, वो भी कहीं ना कहीं वो हील हो जाएगा। एंड दे मेट वंस मोर, वंस अगेन, in silence, in quiet. But there were no violence, there were no flowers, there were no promises, no apologies, just their eyes met and they said, I still love you. But it didn't last because even after that, he died. Yes, he died. And after few time, she also died. They both died, not together, but alone in their own misery. बट यहाँ पे ये कहानी खत्म नहीं हो रही है, कहानी यहाँ पे बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही है। सो द ब्रायनी गर्ल, द ब्रायनी, तो अभी ना उसको गिल्ट फील होने लग गया, ठीक है। अभी उसको लगने लगा कि ये उसके वजह से हुआ, जहाँ पे दो सोल अलग हो गए, ठीक है। तो उसने अपने राइटिंग में उन लोगों के बारे में लिखा ताकि वो दुनिया को बता सके कि ओके उससे गलती हुई, एंड ये दो सोल कैसे प्योर थे, उनका लव एंड ऑल चीजें, ठीक है। बिकॉज वो उससे ज्यादा कुछ ऑफर नहीं कर सकती थी, शी कांट ऑफर एनीथिंग, ठीक है। तो उसने सोचा कि चलो मे बी ये करके शायद वो थोड़ी पश्चाताप कर ले अपने लाइफ में, ठीक है। ये एक फिक्शन की तरह लिखा उसने, बट इट वाज अ ट्रू स्टोरी। एंड उन दोनों को कोई जस्टिस नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, जस्ट अ बुक उनके लिए डेडिकेटेड था। सो कभी कभी लाइफ में हम भी अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं जहां हम कभी ससीलिया होते हैं, कभी हम रॉबी होते हैं, या फिर कभी कभी हम खुद ही ब्रायोनी बन जाते हैं। इवन दो वी डोंट वांट टू इंटरप्ट समवन, इवन दो वी डोंट वांट टू हर्ट समवन, बट स्टिल हम कभी कभी ब्रायोनी बन जाते हैं किसी दो पर्सन के लाइफ में। एंड यू नो लाइफ में ना हमें भी कभी कभी चांस नहीं मिलता है कि हम सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन कर सके, हमें गुड बाय बोलने का चांस नहीं मिलता है, हमें पता होता है कि इवन दो आवर लव इज रियल, बट इट स्टिल इजंट इनफ फॉर अस, ठीक है, ये चीज होती है। एंड अटॉर्नमेंट हमें बताता है पेनफुली बट इन अ ब्यूटिफुल वे दैट yes, we like there are person who don't get closer, so if you are getting a closer, if you are getting a chance कि आप उस person से last time बात कर सको and उसको जाके goodbye बोल सको, so just go and run to him, her, just say that okay, like okay हमारे बीच में चीजें work नहीं की, but still in the end I'll miss you, you were important to me, ठीक है। बिकॉज वो जो गिल्ट होता है ना, वो जो रिग्रेट होता है ना लाइफ लॉन्ग, उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये यहाँ पे जब वो पर्सन आपसे दूर जा रहा हो ना तो कुछ मैटर नहीं करता उसमें ईगो ये वो चीजें, बिकॉज उस समय अगर आप उसको गुड बाय बोल रहे हो तो आप चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड आप चीजों को एक्सेप्ट करके खुद को माफ कर पाओगे। एंड माफ करना खुद को बहुत जरूरी है, माफ करना बहुत जरूरी है उस वर्जन को जहाँ पे आप उस वर्जन में अभी भी हो ना, जहाँ आप सोच रहे हो कि यस ये लाइफ मेरी उस पर्सन के साथ में हो सकती थी, बट जब आप माफ करोगे ना तो आप उस पर्सन को बोलोगे कि ओके ये वर्जन था मेरा बट अब ये नहीं एग्जिस्ट करता। तो फॉरगिवनेस इज इम्पोर्टेंट ताकि आप खुद को फ्री कर सको। ऐसा नहीं कि आप यूल फॉरगेट योर लव, नो दैट्स नॉट ट्रू, बट आप खुद को फ्री कर पाओगे, आप चीजों को एक्सेप्ट कर पाओगे, आप चीजों को एक्सेप्ट कर लो, खुद को फॉरगिव करो, बिकॉज इससे आप फ्री होगे। बिकॉज लाइक टाइम एंड द वर्ल्ड डजंट वेट फॉर योर लव टू ब्लूम, it will go on, ठीक है, but the love still mattered,
उन दोनों का जो लव था, दैट केस इन द लाइब्रेरी, द लेटर्स, एंड हमारे बीच में भी जो होता है ना, जो दो पर्सन अगर आपकी लाइफ में कोई है या थे, तो जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं जहाँ आपको बटरफ्लाईज होते हैं ठीक है, आपके अंदर बटरफ्लाईज जब होते हैं, तो वो मोमेंट, दैट ऑल मोमेंट मैटर्ड, लव मैटर्ड, इट वॉज रियल ऑल्दो इट वॉजंट एनफ। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इससे हम क्या ले सकते हैं, इस बुक से हम क्या सीख सकते हैं? सो इस बुक से हम ये सीख सकते हैं कि लव डजंट नीड टू लास्ट फॉर एवर सो दैट इट कैन शेप अस। वो एक मोमेंट, वो एक पल जो होता है ना, वो आपको कंप्लीटली चेंज कर देता है। वो लाइफ लॉन्ग आप चेरिश करते हो बैठ करके कि यस, मतलब, और वो एक लेटर, वो एक किस, वो एक टॉक, वो एक लास्ट मीटिंग, वो एक लास्ट गुड बाय, लाइक वो जो आपके अंदर टूटा हुआ है ना बहुत टाइम से, वो आपको हील कर देता है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं इस पूरे से कि फॉरगिवनेस जो होता है ना, वो हमेशा आप दूसरों को नहीं देते, वो आप खुद को देते हो, ताकि आप खुद को फ्री कर सको, ताकि आप यू you नो खुद को आगे बढ़ सको लाइफ में, खुद को आगे बढ़ा सको लाइफ में। देखो, पेन जो हो रहा है ना, होता है, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, लोग चले जाते हैं आपके लाइफ से, तो हमें होता है कि पेन होता है कि ओके, हमें रिग्रेट होता है कि यार हम वो वेस्ट हो गया हमारा प्यार। नो, लव नेवर गो वेस्टेड, ठीक है। अगर आपको पेन फील हो रहा है, दैट मीन्स यू डेयर टू लव डीपली, ओके, एंड दैट इज समथिंग यू शुड बी प्राउड ऑफ। सो इफ यू आर होल्डिंग ऑन समवन, जरूरी नहीं कि वो आपसे दूर चले गए हो, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, वो आपसे किसी भी रीजन से दूर गए हो सकता है उनकी डेथ हो गई हो, या फिर हो सकता है कि लाइफ जो है आपको चांस नहीं दिया हो उसने, मे बी टाइमिंग हैड फेल्ड यू, मे बी सोसाइटी फेल्ड यू, मे बी डेस्टिनी फेल्ड यू, बट what didn't fail you was like love didn't fail you, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि अब आपको उनको जाने देना होगा अपने लाइफ से, ठीक है, ताकि आप अपना लाइफ जी सको, ताकि आप खुश रह सको, एंड इस स्टोरी को ना अपना अटॉनमेंट बनने दो, ठीक है। इस स्टोरी को अपना अटॉनमेंट बनने दो, ताकि आप इस स्टोरी को पढ़ने के साथ साथ आप भी अपने रिग्रेट्स, अपने गिल्ट्स, और अपना वो जो वर्जन था ना जो पास्ट में रह रहा है, उसको आप जाने दो, ठीक है। एंड जब वन डे, अब अगर आप ये कर लोगे ना, तो जब आप ऐसे मतलब बैठे होगे ना कहीं पे भी, एंड व्हेन यू क्लोज योर आईज, एंड जब आप अपना वाला मोमेंट याद करोगे, जब सिसीलिया और रॉबी याद कर रहे होंगे, दैट लव, दैट किस इन द लाइब्रेरी, द लेटर्स, तो जब आप अपना मोमेंट याद कर रहे होगे ना आईज क्लोज करके, तो डेफिनेटली आपके फेस पे एक स्माइल आएगी। इवन दो you lost them, but you never lost what they taught you. So your love was real, and so are you. So with these, let's just wrap this videos. And yeah, one more thing. If you want to connect with me, I'll be sharing all my social media handlings in the description. You can connect with me from there. And thank you so much for watching my videos till here. Kindly like, share, and subscribe to my channel. And bye bye for now.